أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو. تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو. تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اوفو بالعقود. تمام عہد پورے کرو. عقود کا معنی عہد ہے، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے مراد کون سے عہد ہیں اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. ایک، امام ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو. دو، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے ہیں. چار، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں. احلت لکم. تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے. اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرماتے ہیں. حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. اور تم حالت احرام میں ہو. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے جبکہ دریائی شکار جائز ہے. خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو. احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا، اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वला शारल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना व इज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो हलाल न ठहरा लो अल्लाह के निशान और न अदब वाले महीने और न हरम को भेजी हुई कुर्बानियाँ और न जिनके गले में अलामतें आवेज़ा और न उनका माल आबरू जो इज्जत वाले घर का कस्द करके आए। अपने रब का फजल और उसकी खुशी चाहते और जब एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते हो। और तुम्हें किसी कौम की अदावत के उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, ज्यादती करने पर न उभारे और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती पर बाहम मदद न दो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। तर्जमा कंजुल इरफान, ए ईमान वालो अल्लाह की निशानियां हलाल न ठहरा लो और न अदब वाले महीने और न हरम की भेजी गई कुर्बानियाँ और न हरम में लाए जाने वाले वो जानवर जिनके गले में अलामती पट्टे हों और न अदब वाले घर का कस्द करके आने वालों के मालो इज्जत को जो अपने रब का फजल और उसकी रिजा तलाश करते हैं। और जब एहराम से बाहर जाओ तो शिकार कर सकते हो और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस वजह से ज्यादती करने पर न उभारे कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती पर बाहम मदद न करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है। तर्जमा ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, अल्लाह की निशानियां हलाल न ठहरा लो। इस आयत में दीन की निशानियों की कदर करने का हुक्म फरमाया है और माना यह है कि जो चीजें अल्लाह ताला ने फर्ज की और जो मना फरमाई सबकी हुर्मत का लिहाज रखो। नीज जो चीजें अल्लाह ताला की निशानियां करार पा जाए उनका एहतराम करना बहुत जरूरी है। लिहाजा दीनी अज़मत वाली चीजों का एहतराम किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह हज आयत नंबर 32। तर्जमा और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों का तक़वा है। इस शआइर अल्लाह यानी अल्लाह ताला की निशानियों में खाने काबा, कुरान पाक, मसाजिद, आजान, बुजुर्गों के मज़ारात वगैरह सभी दाखिल हैं। बल्कि जिस चीज को अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से निस्बत हो जाए वो भी शआइर अल्लाह बन जाती है। जैसे हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदम सफा और मरवा पहाड़ों पर पड़े तो पहाड़ शआइर अल्लाह बन गए और रब्बे करीम अज़्ज़वजल ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सूरह बकरा आयत नंबर 158। तर्जमा बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। वला शहरल हराम और न हुर्मत वाले महीने को फरमाया गया कि हुर्मत वाले महीने को हलाल न ठहरा लो। मोहतरम महीने 4 हैं, रजब, ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम।
ज़माने जाहिलियत में भी कुफार इनका अदब करते थे और इस्लाम ने भी इनका एहतराम बाकी रखा। याद रहे कि अव्वलन इस्लाम में इन महीनों में जंग हराम थी। अब हर वक्त जिहाद हो सकता है, लेकिन इनका एहतराम बदस्तूर बाकी है। इसकी तफसील सूरह तौबा आयत नंबर 36 में आएगी। वलल हदिया वलल कलाइद, और न हरम की कुर्बानियाँ और न अलामती पट्टे वाली कुर्बानियाँ। अरब के लोग कुर्बानियों के गले में हरम शरीफ के दरख्तों की छाल वगैरह से हार बुनकर डालते थे ताकि देखने वाले जान लें कि ये हरम को भेजी हुई कुर्बानियाँ हैं और इनसे छेड़खानी ना करें। हरम शरीफ की उन कुर्बानियों के एहतराम का हुक्म दिया गया है। वला आमीनल बैतल हराम, और न अदब वाले घर का कस्द करके आने वालों के मालो इज्जत को। अदब वाले घर का कस्द करके आने वालों से मुराद हज उम्रा करने के लिए आने वाले हैं। आयत का शान नुज़ूल ये है कि शुरैह बिन हिंद एक मशहूर बदबख्त था। वो मदीना तैयबा में आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक़े खुदा को क्या दावत देते हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने रब ताला पर ईमान लाने और अपनी रिसालत की तस्दीक करने और नमाज कायम रखने और ज़कात देने की दावत देता हूँ। वो कहने लगा, बहुत अच्छी दावत है, मैं अपने सरदारों से राय ले लूं तो मैं भी इस्लाम लाऊंगा और उन्हें भी लाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले ही अपने असहाब को खबर दे दी थी कि कबीला रबीआ का एक शख्स आने वाला है जो शैतानी जबान बोलेगा। उसके चले जाने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर का चेहरा लेकर आया और गद्दार और बदअहद की तरह पीठ फेर कर गया। ये इस्लाम लाने वाला नहीं। चुनांचे उसने फरेब किया और मदीना शरीफ से निकलते हुए वहां के मवेशी और अमवाल ले गया। अगले साल वो यमामा के हाजियों के साथ तिजारत का कसीर सामान और हज की कलादा पोश यानी मखसूस हार वाली कुर्बानियां लेकर हज के इरादे से निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने उसी शुरैह को देखा और चाहा कि मवेशी उससे वापस ले लें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि जो हज के इरादे से निकला हुआ हो उसे कुछ ना कहा जाए। वह इज़ा हलल तुम, और जब तुम एहराम से फारिग हो जाओ। एहराम से फारिग होने के बाद हरम शरीफ से बाहर शिकार करने की इजाजत है। ये हुक्म दर हकीकत एक इजाजत है, मगर इबाहत जायज होना ऐसी कतई है कि इसका मुनकिर काफिर है। वला यजरिमन्नकुम, और तुम्हें बरंगेख्ता ना करे। मुराद ये है कि अहले मक्का ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रदी अल्लाह ताला अन्हुम को हुदैबिया के दिन उम्रा करने से रोका, लेकिन तुम उनके इस मुआनिदाना फेल का इंतकाम ना लो। अलबत्ता ये याद रहे कि अब काफिर को मस्जिद हराम से रोका जाएगा, क्योंकि बाद में मुमानअत का हुक्म नाजिल हो गया था।
चुनांचे फरमाने बारी ताला है इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, सूरह तौबा आयत नंबर 28। तर्जमा, मुशरिक निरे नापाक हैं तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। वताबनु, और एक दूसरे की मदद करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दो बातों का हुक्म दिया है, एक नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करने का, दो गुनाह और ज्यादती पर बाहमी ताबुन ना करने का। बिरसा मुराद हर वो नेकी है जिसके करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, और तकवे से मुराद ये है कि हर उस काम से बचा जाए जिससे शरीयत ने रोका है। इसमें से मुराद गुनाह है, उद्वान से मुराद अल्लाह ताला की हुदूद में हद से बढ़ना है। एक कौल यह है कि इसमें से मुराद कुफ्र है और उद्वान से मुराद जुल्म या बिदअत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नेकी से मुराद सुन्नत की पैरवी करना है। हजरत नवास बिन सिमआन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और लोगों का इससे वाकिफ होना तुझे नापसंद हो। ये इंतहाई जामे आयत मुबारका है। नेकी और तकवे में उनकी तमाम अनवाओ अक़साम दाखिल है और इसमें और उद्वान में हर वो चीज शामिल है जो गुनाह और ज़्यादती के ज़ुमरे में आती हो। इल्म दीन की इशाअत में वक्त, माल, दर्स और तदरीस और तहरीर वगैरह से एक दूसरे की मदद करना, दीन इस्लाम की दावत और उसकी तालीमात देना, दुनिया के हर गोशे में पहुंचाने के लिए बाहमी ताबुन करना, अपनी और दूसरों की अमली हालत सुधारने में कोशिश करना, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना, मुल्क और मिल्लत के इज्तिमाई मफादात में एक दूसरे से ताबुन करना, सोशल वर्क और समाजी खिदमात सब इसमें दाखिल है। गुनाह और जुल्म में किसी की भी मदद न करने का हुक्म है। किसी का हक मारने में दूसरों से ताबुन करना, रिश्वत लेकर फैसले बदल देना, झूठी गवाहियां देना, बिला वजह किसी मुसलमान को फंसा देना, जालिम का उसके जुल्म में साथ देना, हराम और नाजायज कारोबार करने वाली कंपनियों में किसी भी तरह शरीक होना, बदी के अड्डों में नौकरी करना, ये सब एक तरह से बुराई के साथ ताबुन है और नाजायज है। सुबहान अल्लाह, कुरान पाक की तालीमात कितनी उम्दा और आला है। इसका हर हुक्म दिल की गहराइयों में उतरने वाला, इसकी हर आयत गुमराहों और गुमराहगरों के लिए रोशनी का एक मीनार है। इसकी तालीमात से सही फायदा उसी वक्त हासिल किया जा सकता है जब इन पर अमल भी किया जाए। अफसोस फी जमाना मुसलमानों की एक तादाद अमली तौर पर कुरानी तालीमात से बहुत दूर जा चुकी है। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को कुरान के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।